इतना ज्यादा क्रेज है कि वो बंदे सुबह भी गुरुद्वारे जा रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के जा रहे हैं, रात को वहां पे रह रहे हैं, संडे छुट्टी है, सारा दिन वहां पे सेवा कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें बाहर भेज दो भगवान। और आप बिलीव नहीं करोगे, रिसेंटली मेरे पास केस आया जिसने 18 लाख रुपया लिया है, जबकि वो लेडी 5 घरों में काम करती है और 1,000 रुपया उसे एक घर से मिलता है। In the last few weeks, you may have seen hundreds of Indian deportees being sent back to India. Most of them belong to Punjab, Haryana, and Gujarat. They were flown in huge C-17 aircraft, which are used by the US Air Force, and were seen in shackles, all a part of Donald Trump's sweeping crackdown on illegal immigrants in the US. But this video is not about that. It is about some questions which still remain unanswered, such as how did Indian immigrants enter the US without proper documents such as visa or a work permit? We looked at 8 FIRs filed by deportees in Punjab to find out answers to this question. The complainants are 1 woman and 7 men, the youngest 21 years old and the oldest 45 years old. At least 2 of them have described traversing 12 countries by air, boat, road, and even on foot. That is, they have covered a whopping 28,000 kilometers, and over 40% was on foot and by road. The Punjab police said that though the deportees started out from different countries, they normally enter through Central America and travel through countries such as Panama, Costa Rica, Nicaragua, and enter Mexico. On your screen, we map out the journey taken by one of the 8 complainants. He flew from Mumbai to Suriname in South America. Then he travelled to Guyana by boat with 20 other men. From there, he entered Brazil by bus. Then he travelled through Brazil and then to Bolivia, to Peru, to Ecuador, to Colombia by bus. Then he was taken to Capurganá Island via boat. He then had to walk through the notorious Darien Gap, a vast roadless jungle with mountains, swamps and rivers. Located between Colombia and Panama, the area is controlled by drug cartels and human traffickers. Despite these dangers, over 500,000 migrants from Venezuela, China, Africa, India and the Middle East took this route in 2023. Why? Because it's the only land route connecting South and North America. From Panama, he was taken to Panama City, hiding with 10 other men in vegetable carts. From there, he traveled to Costa Rica, then to Nicaragua, then to Honduras, then to Guatemala, and then to the Guatemala-Mexico border. From here, he went to Cancun City in a boat. From there, they went to Mexico City in a container and then flew to San Cabo in Mexico. From here, he took the road to the Tijuana border to illegally enter the US. After covering this harrowing journey for over 7 months, the complainant was held by the Border Patrol just an hour after crossing to the US and he was deported to India. ये जो आपने बोला है कि बहुत सारी कंट्रीज क्रॉस करते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मनी गिवन बाय द पर्सन, कि जितना शॉर्ट डिस्टेंस उतना बिग अमाउंट, और जितना लॉन्ग डिस्टेंस उतना ही कम अमाउंट. This was Miss Parminder Jeet, who works with an NGO to rehabilitate deportees from Punjab. She tells us about how aspiring migrants are persuaded into selling practically everything they own just so that they can go abroad. But before that, who are these agents and how do they lure people? Most deportees have claimed that they were approached by friends or relatives or acquaintances who promised to send them to the US for rupees 45 lakh or 60 lakh or in one case even rupees 85 lakh. So जो हमने देखा, जैसे आजकल पंजाब में क्या चल रहा है कि बेसिकली गुरुद्वारों में सबसे ज्यादा ऐसी जनता आती है जो जाके प्रे करती है कि हमारा वीजा लग जाए. वहां पे जैसे लोग जाके बैठते हैं तो आपस में बात, जब डेली मिलते हैं तो बात होती है, तो रीजन पूछते हैं भाई तू क्यों आ रहा है, तो वो बताता है कि मैं वीजा के लिए आ रहा हूँ. तो ये क्या होता है, एजेंट एक होता है और उसके जो आसपास उसने 10 अपने सब एजेंट छोड़े होते हैं जो अलग अलग जगह पे रीच करते हैं ऐसे. ठीक है,
तो वो जाके उनका जब दुःख सुनते हैं तो वो उनको ये बिलीव दिलाते हैं कि हम गवर्नमेंट धार्मिक स्थान पे तुम्हें मिले हैं, भगवान की जगह पे तुम्हें मिले हैं और हम तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा या करूँगी क्योंकि ये भगवान का स्थान है और मैं अच्छा करना चाहता हूँ कुछ। आप बिलीव नहीं करोगे वो उनके घर तक पहुँच जाते हैं ड्रेस लेके। हुँ। और घर पे जाने के बाद उनके साथ एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे घर पे जाते हैं तो उनका कोई बच्चा भी अच्छा ये बीमार, मैं मेडिसिन बताता हूँ आपको। तो उनको बोलते हैं कि हमें आपका बच्चा आपका सपना है, हमें पूरा करना है, हमें भगवान ने भेजा आपके लिए। तो उन लोगों का पहले ये पता कराते हैं इनके पास पैसा कितना है। अगर पैसा नहीं है, तो अब ये पता है घर आपका है? अपना है? हाँ, अगला बोलेगा कि हाँ मेरा है, अगर तो उसका है। फिर तरीका निकालते हैं कि कहाँ से पैसे निकालें, इनको लोन कैसे मिल सकता है। हुँ। और बैंक में इनके इतने अच्छे लिंक्स होते हैं लोन दिलवाने के लिए कि ये उस बंदे के प्रॉपर्टी के पेपर लेके जहाँ किसी तरीके के भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है फेक ओरिजिनल खुद बनाते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं उनको नॉलेज नहीं है। तो वो एग्री कर जाते हैं, वो जो बोलते हैं ये कि ये कागज बनवाना है वो बनवाना है वो बनाते हैं। Another aspect to note here is that most of the complainants belong to rural Punjab and are educated only till class 10 or class 12. सेकंड केस ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोदवार लोग होते हैं, जैसे सरपंच के साथ सब सरपंच होते हैं उनके, या कोई भी ऐसा बंदा जो वहां पे लोगों की पढ़ा लिखा है और वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो एजेंट क्या करते हैं उनको पिच करते हैं, बोल देते हैं कि अगर तू एक फाइल हमारे पास लेके, एक फाइल मतलब एक कैंडिडेट है ना, लेके आते हो उसका जितना अमाउंट होगा हम उससे लेंगे, उसका 10% तुम्हारा। राइट। सो ये बहुत इजी वे होता है लोगों तक अप्रोच, क्योंकि एजेंट सामने नहीं आएगा, वही बंदा सामने रहेगा और उसके थ्रू सारा काम जो है होगा। The Punjab police has registered 19 FIRs based on deportees' complaints and arrested 3 unauthorized travel agents so far. Haryana has reportedly registered at least 13 FIRs, while in Gujarat, there have been no reports of FIRs being registered yet. Which brings us to our next question. Why are deportees reluctant towards taking legal action against the agents who duped them? Parminder explains this in 5 bullet points. मुझे लगता है कि उनको टाइम लगेगा इस चीज से बाहर आने का, इतना पैसा वेस्ट होने का, प्लस जो वो डोंकी लगा के वहां पे गए, वो रास्ते में जो उन्होंने तकलीफ देखी, किस डेड बॉडीज को देखा वहां पे पड़ी, मतलब कई बार बंदे के दिमाग में आता है कि ये मैं भी हो सकता था, कि हो सकता था कि मैं वहां पे पहुंचते पहुंचते मैं भी ना पहुंच पाता, जब मैं भी रास्ते में कुछ, तो इन चीजों ये ट्रॉमास है उनके माइंड में ब्रेन में जो जा चुके हैं। दूसरा जो उनको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, उनको ये है कि अगर हम पुलिस केस करते हैं तो दोबारा हमें इन ऑलरेडी उनकी सिचुएशन वो पैसे के बोझ कर्जों के बोझ तले जब दबे हुए हैं, तो वो और पैसा इसमें यूज करना नहीं चाहते कि हमें इसमें पैसा लगाना पड़ेगा। थर्ड ये है कि उनको लग रहा है कि हमें अभी ये एक्स्ट्रा झंझट हो जाएगा कि बार-बार हमें पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, बार-बार हमें कहीं पे बुलाया जाएगा, तो वो झंझट। फोर्थ मैं आपको बताऊँ, जो हमारी ओमान की लड़कियाँ वापस आई थी, उनसे हमने केस करवाया था और दे वर गेटिंग थ्रेट। कहीं न कहीं से उनको थ्रेट आ रहा था कि ये केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। तो लोग उस चीज़ से डरते हैं। और एक रीज़न जो मैंने नहीं बताया, वो रीज़न ये है कि most of people were aware that they are going illegal. Which is my next question कि क्या उनकी कोई culpability होती है, because ultimately they made the choice to go and again it's Right. their choice if they want to file a complaint or not. राइट, राइट। तो उनकी ये विलिंगनेस थी, और मैं आपको ये भी बताऊं, कहीं ना कहीं एजेंट्स ने उनसे लिखवा भी रखा होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो उनको वो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को इस चक्कर में हम लोग खुद ही फंस जाए। In this situation, Parminder suggested that the police ensure the complainant's safety and asserted on awareness as a solution to the problem. If you appreciate our coverage and want us to do more such work, consider supporting us by becoming a member. आप अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हो तो पंजाब गवर्नमेंट की भी वेबसाइट है, उस पे रजिस्टर्ड जो है वो
एजेंट्स हैं उनकी लिस्ट डेफिनेटली होती है। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल सकते तो आप डीसी ऑफिस, और सेकेंडली अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करे तो ये जैसे बोर्ड्स लगे होते हैं ना, तो इस तरीके के बोर्ड्स जहाँ लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, इनकी कोई कॉपी, डायरी, कुछ भी पासपोर्ट बनता है या कुछ भी बनता है, उनके साथ ये लिस्ट उनको दे भी सकते हैं।